In chemical kinetics, as we have discussed about rate of reaction, rate constants, and the next point that we are discussing is the factors affecting rate of reaction. The first factor, that is concentration of reactants, that is discussed in terms of rate law, because the rate law is basically, you can say, uh, tells us or describes the effect of concentration of reactants on rate or rate constant. Okay. And next thing is how temperature affects the rate of reaction. For this, actually Arrhenius was the first one who gave actually a quantitative relationship. मतलब you can calculate कि आप इतना temperature increase कर रहे हो तो what would be the new rate constant, because as I told you earlier that rate constant is the otherwise it is a constant for a particular reaction. Throughout the reaction the value of rate constant remains same, but it depends on temperature. If you are changing temperature, rate constant will also change. ठीक है, तो and rate constant increase होता है temperature increase करने से, and also the rate increases. Clear? तो दिस रिलेशनशिप जो हम एक जनरल कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, वो किस एक्सटेंट तक बढ़ेगा, दैट इज क्वांटिटेटिवली दैट रिलेशनशिप वाज गिवन बाय अरेनियस. तो दैट इज द मेन मतलब टॉपिक जो आपके चैप्टर में, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस, रेट लॉ एंड सेकेंड टेम्परेचर, दो जो है दोनों इंपॉर्टेंट है. दोनों के बेस पे न्यूमेरिकल्स फर्स्ट पे हमने कर लिए एंड सेकेंड विल डू. So it has been observed that rate constant for a particular chemical reaction gets doubled for every 10 degree Celsius rise in temperature. अगर हम 10 degree Celsius या 10 Kelvin temperature को बढ़ा देते हैं, increase कर देते हैं, then rate constant approximately gets doubled. Rate constant की जो value है वो double हो जाएगी हर एक 10 degree rise पे. And in 1889, इससे पहले तक एक्चुअली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं था. ओनली दैट ऑब्जर्वेशन वाज देयर कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है किस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वाज नॉट नोन टू द साइंटिस्ट. In 1889, Arrhenius proposed an equation that related temperature and rate constant directly. And this equation is known as Arrhenius equation. And this equation was K is the rate constant. It is equal to A e raised to the power minus EA over RT. अब इस इक्वेशन में बेटा एक्चुअली एक्सपोनेंशियल टर्म जो है मतलब दिस K is rate constant, A is Arrhenius constant भी कह सकते हो उसको, और it is also known as frequency factor. Frequency factor means this is actually representing collision frequency. Actually Arrhenius and many other scientists they proposed a theory, और ये जो जितना भी actually temperature dependence वाला जो factor है, it believes that chemical reaction takes place by collision of molecules. तो frequency factor जो है वो represent कर रहा है कि किस frequency क्या है उन collisions की particles की. ठीक है, तो ये एक particular reaction के लिए एक कांस्टेंट होता है एंड इट वेरीज फॉर डिफरेंट रिएक्शन. मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. एंड दिस मे बी आल्सो टर्म्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और अरेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं. एंड EA, कैपिटल E और सबस्क्रिप्ट लगाना स्मॉल a, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी. इज फॉर एनर्जी, A इज फॉर एक्टिवेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर. एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना, ये हमें एक्सटर्नली देनी पड़ती है, या तो समटाइम्स वी नीड टू प्रोवाइड इट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और समटाइम्स इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लेसर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अपने आप सराउंडिंग से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इट मे बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज एज वेल. ओके, R is that is universal constant, सेम जो हम इतने टाइम से R की, और यहाँ वैल्यू भी आपने 8.314 जूल पर केल्विन मोल यूज करनी है. टेम्परेचर T जो है एक्सपोनेंशियल टर्म में, दैट इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन फॉर्म एब्सोल्यूट स्केल पे. ठीक है, एंड these two factors A and EA, these second and third, these two factors are collectively known as Arrhenius parameters. ठीक है, तो sometimes question may be asked give Arrhenius equation and
मेंशन अरेनियस पैरामीटर्स और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो अरेनियस पैरामीटर ए जो है, इट टेल्स अस कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द पार्टिकल्स और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एंड EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। एंड एक्सपोनेंशियल टर्म जो है पूरा e raised to the power minus EA over RT, it is actually representing the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy. This will discuss कि activation energy क्या है और कितना fraction जो है molecules का उनमें इतनी energy रहती है कि वो reaction में participate, मतलब effective participation should be there. जो collisions हैं वो effective होने चाहिए तभी product बनते हैं, otherwise नहीं. तो let us move towards this, what is activation energy. and ये इक्वेशन जो है, दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म, इसको बाद में अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म का आपको पता है लॉग हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो नेक्स्ट विल सी द सिंपल फॉर्म ऑफ दिस अरेनियस इक्वेशन to use in numericals. But otherwise, if it is asked what is the effect of temperature on rate of reaction, give Arrhenius equation. तो ये ही वाली इक्वेशन आपने देनी exponential term वाली. Clear? This is the basic equation. इसको बाद में log लेके solve करके हम simplify करते हैं for calculation purposes. Okay? So according to Arrhenius, a reaction can only take place when a molecule of one substance collides with the molecules of other substance. Means जब आप reactant molecules जो हैं, अगर एक ही reactant species है तो वही आप molecules आपस में collide करेंगे. If two different substances you are using, तो those two particles must collide with each other. तो जब वो कोलाइड करते हैं तो एक्चुअली यू नो दैट मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड ऑलरेडी विद सम केमिकल बॉन्ड्स. तो वो केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगे एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स विल स्टार्ट टू फॉर्म. तो ये दोनों ही तरह के बॉन्ड्स एक्चुअली अभी मतलब पुराने टूटना शुरू हो रहे हैं और नए बनना स्टार्ट हो रहे हैं. ये एक स्टेट जो आती है इंटरमीडिएट स्टेट इसको कहते हैं. एंड दिस इंटरमीडिएट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. मतलब इसमें न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं. अर्लियर बॉन्ड स्टार्ट टू ब्रेक, मतलब वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गए. तो मतलब इतने सारे केमिकल बॉन्ड्स नए भी बन रहे हैं और पुराने टूट भी रहे हैं. तो ये जो स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती है. इट्स हाई इन एनर्जी एंड इट इज नॉट एट ऑल स्टेबल. तो दिस इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स exists for a very short time and then breaks up to form molecules of the product. Clear? Activated complex बनेगा कैसे? जितने भी reactant species है, if two species are there, तो दोनों आपस में react करेंगी. तो आपको इस तरह से मतलब अगर शो करना है तो सपोज आपके बुक में एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म HI. तो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक भी हो रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल्स का वो जो बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड वो ब्रेक डाउन होगा, आयोडीन के साथ उसका न्यू बॉन्ड बनना फॉर्म होगा. तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, दिस इज अ अनस्टेबल स्टेट एंड इट एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और ये फर्दर ब्रेक हो जाएगी, मतलब जो HH बॉन्ड और II बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे और HI के बीच में बॉन्ड बनना वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा. So the minimum amount of kinetic energy that reactant molecules must possess to have effective collisions. मतलब अब ये क्या intermediate activated complex कैसे बनेगा? जब particles आपस में collide करेंगे. अगर collide करेंगे ही नहीं तो chances नहीं है reaction होने के. Clear? तो this is actually collision theory of kinetics. Chemical kinetics पूरा जो based है वो collision theory पे है कि particles must collide with each other in order to bring about केमिकल रिएक्शन. और इस कोलिजन के टाइम पर जो पार्टिकल्स हैं उनमें इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव हो, इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके. तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो पार्टिकल्स में होनी चाहिए, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ET. बट एक्चुअल में क्या होता है कि जितने अपने स्पीशीज पार्टिकल्स लिए हैं, all those particles do not have that much sufficient energy. ठीक है, बट अब रिएक्शन तो करवाना है. दैट इज व्हाई वी नीड टू. तभी आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो ना कि इस रिएक्शन को इतने टेम्परेचर पे करवा रहे हैं, इस रिएक्शन के लिए ये लाइक हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं. अगर कोई गैसियस है तो प्रेशर से भी काफी इफेक्ट होती है. या इस मतलब पर्टिकुलर बेसिकली हम देख रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, चाहे हम सनलाइट में रख रहे हैं, इलेक्ट्रिकली एनर्जी दे रहे हैं.
तो एक्चुअल में दैट एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू मॉलिक्यूल्स, वो क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है? बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो इफेक्टिव कोलिजन्स करवाने के लिए रिक्वायर्ड है, उतनी होनी चाहिए, बट होती नहीं है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में। अगर है तो ऑब्वियसली उसी टेम्परेचर पे या उसी अमाउंट सराउंडिंग्स में वो रिएक्ट कर जाएंगे, बट अदरवाइज जनरली इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, एंड थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट सराउंडिंग से ही पूरी कर लेते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो all molecules do not have that much energy, so extra energy is required to overcome this threshold barrier and to form the activated complex. And this extra amount of energy which is to be provided to the reactant molecules कि वो उस threshold barrier को पार करके एक activated complex बना सके, उस amount of energy को हम कहते हैं activation energy. Means actually the energy which is required to activate reactant molecules in order to bring about a chemical reaction. Activate होंगे तो उनकी collisions जो हैं वो effective होंगी, and they will be able to form intermediate or activated complex, and at that time reaction will take place. तो threshold energy की requirement को पूरा करने के लिए हमें बाहर से कुछ extra amount of energy provide करनी पड़ती है particles को, reactant molecules को. That energy is known as activation energy and it is represented by EA. Threshold energy ET से represent करते हैं. So here we can see this graph between energy of particles versus progress of reaction. So initially, if we see, just wait. So initially, if we see, we have taken reactant molecules, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो इतनी है. ये एनर्जी वाला मतलब वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी लिया हुआ है ना, वैल्यू. तो वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज दिस. और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब इफेक्टिव कोलिजन्स कब होंगे? जब पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी होगी, विच इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी. और इस एनर्जी वाले पार्टिकल्स ही इतना इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे कि दे विल फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो ये जो पीक आपको कर्व का मिल रहा है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बाय द पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब इतना एनर्जी चाहिए, बट रिएक्टेंट्स के पास तो यही एनर्जी है. तो दिस मच एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतनी एनर्जी ऑलरेडी है. तो दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज टू बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा टू द पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू यू कैन से क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड बैरियर. इसको ये ओवरकम कर पाए इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को, तो हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी है, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. एज सून एज द पार्टिकल्स विल एक्वायर दिस मच एनर्जी, all of these collisions will be effective. Otherwise वैसे सारे collisions effective होते नहीं हैं, only for those particles which acquire that much energy. Still few reactant molecules are not able to, मतलब it depends कि हर टाइम पे collisions तो चल रहे हैं, but all particles are not able. बार बार उनको आपको एनर्जी जब तक आप देते रहोगे, those reactant molecules will gain that much energy and they will change into product. But you know that actually in reactions equilibrium also established, तो reverse reactions भी चलती रहती, तो everything is taken into consideration. So we always say that complete reactants generally do not change into product. ठीक है, तो ये जो requirement है बेटा, this is activation energy. और ये जो entire energy की value है, यहाँ से लेके ये जो curve represent कर रहा है maxima को, that is threshold value. ठीक है, इतनी एनर्जी होगी, then only activated complex will form. Means you can say activated complex जो बन रहा है, because उसकी एनर्जी हाई है, वो unstable होता है, तो वो इस वैल्यू ऑफ एनर्जी पे ही बनेगा. तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको रिएक्टेंट्स को यहाँ तक पहुंचाने के लिए चाहिए, वो एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ती है. क्लियर? और उसके बाद जैसे ही वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट ब्रेक होना स्टार्ट होता है, तो एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और प्रोडक्ट्स जब बनेंगे तो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, अगर उनके केमिकल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड आउट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम हो जाएगी. तो इन दैट केस हीट विल बी रिलीज्ड आउट.
वो और बात है, मतलब मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बट एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल, वेदर इट इज endothermic or exothermic. So here we can see activation energy is defined as the minimum amount of extra energy required to activate or energize reacting molecules or atoms so that they can form activated complex to undergo a chemical reaction. So definition is important. Sometimes it can be asked, what is activation energy? And एक्टिवेशन एनर्जी, एक्चुअली थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू जो है वो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है यहाँ से यहाँ तक, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इन दोनों को ऐड करके आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू मिलती है. तो इफ वी नीड टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. क्लियर? So this is how we can show what is activation energy and what is threshold energy, अगर differentiate करना है. So next if we see for exothermic reaction, जो last curve हमने भी discuss किया, that was for exothermic reaction. ये activated complex इस energy पे बन रहा है. This entire requirement is threshold energy. Reactant molecules की energy ये है. So this minus this will give you activation energy for forward process. यहाँ से बन गया products P, and in exothermic process products always have lesser amount of energy as compared to reactants, क्योंकि exothermic reactions तब होती हैं जब products बहुत ज़्यादा stable होते हैं, उनके chemical bonds stronger होते हैं, तो large amount of heat is evolved out, ये delta H negative होता है for these reactions. और इनका जो reverse है उसकी activation energy higher है. आप देखो compare कर लो, reactant से product बनना activation energy low है, but for exothermic reactions इनका प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती हैं, बट उनका जो बैकवर्ड है उसके लिए आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक, आप ये चीज हमने बेटा वहां पर भी 11th क्लास में पढ़ी थी कि जो थर्मोडायनामिक चैप्टर है कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हमेशा स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेके जाता है प्रोसेस को. तो रीजन क्या है? बिकॉज व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव देन द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड प्रोसेस, मतलब उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरफ जो है रिएक्शन फेवर करती है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेसर as compared to the backward process in which activation energy is higher. Means endothermic reactions में forward direction में reaction को ले जाना है तो आपको ज्यादा activation energy देनी पड़ेगी. तो इसलिए endothermic reactions को ज्यादा amount में heat देने की जरूरत पड़ती है, high temperature पे वो proceed होती है अगर आपने करवानी है. ठीक है, तो ये this is the curve for endothermic reaction. Here you can see reactants have somewhere lesser amount of energy and products have somewhere higher amount of energy. So this much heat which is absorbed by particles, this is actually, मतलब ये वैसे तो activation energy में involve हो गई है, but otherwise I am telling you कि EA is higher for endothermic reaction as compared to exothermic reaction. Clear? Because reactants are already at lesser kinetic energy value और activated complex बनाने के लिए आपको ये इतनी extra amount of energy इनको देनी पड़ेगी. Clear? And products will have somewhat higher energy value. That is another thing, but ये just एक curve का comparison है. Sometimes in MCQs it can be asked. इन curves को बेटा reaction coordinate diagrams भी कहते हैं, जो reaction की progress को particles की जो energy है उसके साथ plot किया हुआ होता है. ठीक है, तो for exothermic reaction it is like this, for endothermic reaction it is like this. तो activation energy requirement for endothermic process is higher than exothermic process. So next is, अब आगे कैसे, अभी तक तो हमने ये देखा कि टेम्परेचर या मतलब टेम्परेचर का जो रिलेशन अरेनियस ने दिया वो जस्ट एक इक्वेशन है, बट अब उससे हम कैसे फाइंड करेंगे कि क्या एक्चुअली क्या होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. तो दिस वाज एक्चुअली कैलकुलेटेड और यू कैन से शोन बाय Maxwell and Boltzmann, actually spelling Boltzmann, यहाँ T भी आएगा बेटा. तो this is shown by Maxwell, Boltzmann, and उन्होंने एक curve actually depict किया था. That curve shows the fraction of molecules which possess the energy greater than or equal to the activation energy.
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ जब कर्व प्लॉट किया, दिस कर्व इज एक्चुअली नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। ये कर्व क्या डिपिक्ट करता है कि एक्चुअल में ये देखो जो पीक यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, इस ये इतनी एनर्जी जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम जो है वो इस पॉइंट के लिए है एक टेम्परेचर टी पर। और ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इन जनरल पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी होती है, और हाईएस्ट मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है वो इतनी एनर्जी पे है। बट रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए वो इतनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ तक ही है पार्टिकल्स की, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बाहर से दे रहे हो, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो पार्टिकल्स को इफेक्टिव कोलिजन्स की तरफ लेके जा रही है। अब इसके बाद में जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑटोमेटिकली ही इतनी मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और इसके बाद वाले जो ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं जो फ्रैक्शन थोड़ा कम हो गया है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी से भी हाई काइनेटिक एनर्जी है। तो मींस ओनली दीज पार्टिकल्स विल कोलाइड इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट रिएक्शन। और ये जो इतने सारे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं ये अभी उस टाइम पे उस टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर रहे। नाउ व्हाट हैपेंस when we increase the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, ये कर्व है आपका T+10 के लिए। टेम्परेचर ने क्या किया, मैक्सिमा को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स राइट साइड, और मैक्सिमा जो है वो अब आपको उतनी हाइट पे नहीं मिल रहा जितना लेसर टेम्परेचर पे था। मींस ये जो पीक है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गई और समवॉट लोअर हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होती है, आपको पहले मैंने उस कर्व में भी दिखाया, बहुत कम एनर्जी पे होते हैं पार्टिकल्स, और रिएक्शन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनाने के लिए we require somewhat extra larger amount of energy जो थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टिकल्स, तब भी उतनी एनर्जी सारे पार्टिकल्स गेन नहीं करेंगे। अभी भी आप देखो इतने पार्टिकल्स अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे ही थे। ठीक है, अब जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये इतने जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी वो कम हो गए, क्योंकि अब और ज्यादा पार्टिकल्स ने एक्टिवेशन एनर्जी एक्वायर की है। एंड इफ यू सी दिस एरिया, ये एरिया आपको डिपिक्ट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। तो ये रेड पोर्शन जो है आपका ये शो कर रहा है लोअर टेम्परेचर पे, और इसी में ऐड कर दो ये ब्लू पोर्शन, तो मींस यू कैन से दिस एरिया ऑफ दिस एरिया अंडर दिस कर्व रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन activation energy. Only these particles will effectively collide with each other to form activated complex. तो टेम्परेचर बढ़ाने से अप्रोक्सीमेटली ये जो एरिया वो डबल हो जाता है 10 डिग्री बढ़ाने से। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन that rate of reaction, or you can say rate constant of a reaction, gets almost doubled when we rise the temperature by 10 degree. मतलब पीक तो लोअर हो जाएगी क्योंकि हमें पीक से मतलब नहीं है, पीक वाले मॉलिक्यूल्स तो कर ही नहीं पा रहे इफेक्टिव कोलिजन, हमें चाहिए ये इस एक्टिवेशन एनर्जी के बाद वाला जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो ज्यादा होना चाहिए। तो लेस टेम्परेचर पे वो कम होता है, जितना टेम्परेचर हाई करते जाओगे, अभी और आप 10 कर दो तो ये मैक्सिमम यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पोर्शन और आगे चला जाएगा, इतना एरिया आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। तो मींस मोर एंड मोर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी in order to bring about effective collision. So this is how temperature affects the rate of reaction. The fraction of molecules which can be represented by Ne over Nt. Ne क्या है? Number of molecules having energy equal to or greater than activation energy. और Nt है total number of molecules. This is known as fraction of molecules. जो ये वाला fraction है, having energy equal to or greater than Ea. It increases with rise in temperature, which is shown in this curve. And with 10 degree rise in temperature, fraction of molecules, मतलब ये जो area है which is lying after this activation energy, ठीक है, it gets almost doubled, and hence rate of reaction, or you can say the rate constant K की जो value है वो double हो जाती है अगर हम
10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है। अब के जब डबल हो जाएगा तो रेट भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, बिकॉज रेट इज अ, और यू कैन से के इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो नाउ मैथमेटिकली अब आपको न्यूमेरिकल्स में कैसे आप फाइंड करोगे कि के की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें इस इक्वेशन को जो अरेनियस ने एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया हुआ है इसका दोनों साइड पे लॉग लेना है, नेचुरल लॉग इफ वी टेक, तो वी विल फाइंड दिस वैल्यू log of k is equal to log of a minus log of exponential term में बेटा वो exponential हट जाता है और वो term as it is आपको with sign minus ea over rt, ठीक है। तो this is the equation which we'll get, or we can also write it as log of k is equal to minus ea over rt plus log of a, and this equation if you see it is similar to y is equal to mx plus c. So if we plot a curve between this is equal to you can say y और इसको हम x एक्सिस पे अगर हम ले रहे हैं 1/t, क्योंकि EA जो है लाइक EA over R ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, तो टेम्परेचर के साथ क्योंकि हम इसको रिलेट कर रहे हैं तो हियर वी विल प्लॉट अ कर्व k 1/t, ठीक है। तो इफ वी प्लॉट अ कर्व बिटवीन k एंड 1/t तो it will be a straight line with a negative slope and this will be the curve natural log of k versus 1/t, ठीक है। तो ये स्लोप जो आपको वैल्यू देगा माइनस EA over R, EA is here एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हम इस स्लोप से निकाल सकते हैं at particular temperature, and intercept will give you the value of Arrhenius factor or frequency collision for that particular reaction. And here in this curve slope that we have already discussed, so if this equation is to be used for numericals, तो अभी जो हमने इसका natural log लिया इसी equation को अगर हम suppose if we are carrying out first the reaction at temperature T1, तो this equation 2 which is the मतलब हमने log form में उसको लिया हुआ है, तो that equation can be written log K1 is equal to A is constant, तो इसकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, माइनस EA भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, मतलब थ्रू आउट द टेम्परेचर अगर कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट वही रहती है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो RT1 क्लियर। एट टेम्परेचर T2 इक्वेशन 2 विल बी रिटन एज log of K2 is equal to log of A minus EA over RT2, तो ये वेरिएबल क्या है यहाँ पे टेम्परेचर और K1 K2, बाकी ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इस इक्वेशन को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट log K2 minus K1 is equal to EA over RT1 minus EA over RT2, एंड आपको पता है बेटा सब्ट्रैक्शन वाली टर्म log में log K2 over K1 हम डिपिक्ट कर सकते हैं, तो K2 over K1 is equal to, अब यहाँ से भी EA over R जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हमने अलग से ले लिया और जो वेरिएबल्स हैं उसको सेपरेट कर दो 1/T1 minus 1/T2, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट, ये अभी तक जो हमने लॉग नेचुरल लॉग में किया हुआ है, इफ वी कन्वर्ट इट इनटू log to the base 10, क्योंकि आपको जो वैल्यूज मिलेंगी टेबल्स में वो log to the base 10 होती हैं, तो फॉर दैट वी रिक्वायर, आप इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो यहाँ शिफ्ट करके इन्होंने EA over 2.303 R कर दिया, यहाँ आपको log K2 over K1 लेना है इक्वल्स टू EA over 2.303 R, और इसको सॉल्व करके T2 minus T1 over T1 T2, तो दिस फाइनल इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट न्यू K2 वैल्यू फॉर नेक्स्ट, मतलब जो भी टेम्परेचर है, चाहे वो T2 जो है आपने राइज किया है अगर, तो K2 की वैल्यू क्या होगी, और अगर सपोज डिक्रीज किया, मतलब वॉट एवर यू आर, हाउ एवर यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द न्यू रेट कांस्टेंट, दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप is given by this equation. ये Arrhenius equation का ही solved form है, but if it is asked only to give Arrhenius equation, तो equation first is to be given, okay, and it is if the numerical involves कि आपका K1 पहले, suppose questions इस तरह से भी है, काफी questions है NCERT में इसके related कि rate constant gets doubled when temperature is increased from
to 373 Kelvin to 383 Kelvin, calculate the energy of activation for the reaction. तो उसमें आपको K2 और K1 डबल दिया हुआ, तो ऑब्वियसली सीधा log 2 कर देना है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन दे दिया कि K1 और K2 गेट्स जस्ट डबल, तो log 2 इज इक्वल टू, ये आपको वहां फाइंड करना है, T2 और T1 की वैल्यू 383 373 पुट करो एंड यू कैन इजीली फाइंड हियर EA. ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन जो है बुक में EA की कैलकुलेशंस के लिए हैं, या फिर न्यू K1 और K2. समटाइम्स टेम्परेचर कैन आल्सो बी आस्क्ड कि इतना पहले K1 था अब इतना हो गया, फाइंड द नेक्स्ट न्यू टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये वैल्यू थी. तो एनी वेरिएबल कैन बी आस्क्ड. Today 5 minutes are there, so we can discuss some NCERT examples. Any doubt if anybody is having in this equation or activation energy? Both of these topics are important. This equation is important for numericals, क्योंकि एक numerical अगर पहले वाले topics में से नहीं है तो इस टॉपिक में से कंपल्सरी, मतलब एक न्यूमेरिकल काइनेटिक्स में से श्योर होता है, वेदर इट इज फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ और फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट, ये टेम्परेचर वाला फैक्टर. ठीक है, और जनरली न्यूमेरिकल्स इसमें से होता है, तो फिर वो रेट इक्वेशन पे से एक शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे व्हाट सिंपल से कि रेट लॉ इक्वेशन लिखो इस पर्टिकुलर के लिए और क्या इफेक्ट आएगा इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन बाय डबल अमाउंट और हाफ कर दें, वो सिंपल से क्वेश्चन. ठीक है, तो दीज बोथ टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस एग्जामिनेशन पर्पस. ओके, so I'm going to stop sharing. Ma'am, will you please allow me to share screen?